اس وقت پوری دنیا میں جس طرح یہودیوں نے اور ایک ناجائز ریاست اسرائیل نے فتنہ اور فساد برپا کیا ہوا ہے، یہ یہودیوں کا مزاج پہلے دن سے دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر، احادیث طیبات کے اندر ان کے اس طرح کے فتنوں کو واضح اور اجاگر کیا گیا، یہاں تک کہ اسلام کے اندر جو غزوات اور جو جنگیں ہوئیں ان کے پیچھے بھی شرارتیں یہودیوں کی تھیں کہ وہ مشرکین کو آگے کرتے تھے، اسلام کے خلاف ابھارتے تھے، پھر خود پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے یوں فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ دونوں طرح اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے دین اسلام کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ واللہ متم نورہ، اللہ اسلام کے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمایا اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے محبوب آپ پائیں گے اسلام کا دشمن ان لوگوں کو جو یہودی ہیں۔ یہودیوں کا ذکر اسلام کے دشمنوں میں پہلے کیا اللہ نے، پھر فرمایا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ بھی اسلام کے دشمن ہیں جنہوں نے شرک کیا، جو مشرکین ہیں۔ یعنی اسلام کے دشمن مشرکین سے بھی بڑے جو تھے وہ یہودی تھے۔ اسلام کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرنا اور دین حق کو ٹھکرانا، یہ ان کا ترہ امتیاز تھا، اور اپنے آپ کو یہ سادات کی اولاد کہتے تھے اور کہتے تھے ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں کیا ضرورت آپ کا کلمہ پڑھنے کی؟ منہ چڑھ کر بولتے تھے میرے آقا کے سامنے، جب حضور دین حق کی دعوت دیتے تھے کہتے تھے ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو انبیاء کی اولاد سے ہیں۔ اب انبیاء کی اولاد سے ہونا، صرف انبیاء کی اولاد سے ہونا یہ کافی نہیں، کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ بندہ نسبی اعتبار سے سید ہو اور ہو مشرک، ہو کافر، تو اس کا نسب اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہودی کیا کہتے تھے؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی اور آپ کے دین کو قبول کرنے کی، اگر اللہ نے کوئی اور نبی بھیجنا ہوتا تو بنو اسماعیل میں کیوں بھیجتا، بنو اسحاق میں بھیجتا۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں اللہ نے سینکڑوں انبیاء بھیجے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ سارے بڑے بڑے انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد سے آئے، صرف حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد سے نہیں تھے۔ اچھا، اب سارے کے سارے نبی آتے رہے حضرت اسحاق کی اولاد سے، اور حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، تمام انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اور حضرت یعقوب کی اولاد میں چونکہ انبیاء ہے اسی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تشریف لائے، اس کے بعد کافی عرصہ نبوت کا دروازہ بند رہا۔ اب ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام جو معمول چل رہا تھا اس سے ہٹ کر حضرت اسماعیل کی اولاد سے آئے۔ اب ان کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ نبوت چلی آ رہی تھی ہماری نسل میں، سارے کے سارے انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد سے، ہم یہودی بھی حضرت اسحاق کی اولاد۔ اب یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، یہ تو قریشی ہیں، یہ تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے صرف نسبی تعصب کی وجہ سے ہمارے آقا کی نبوت کا انکار کیا۔ ورنہ قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی ہمارے آقا کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح بندہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ بندے کو اپنے بیٹے کا تعارف اس کا ڈومیسائل اٹھا کر چیک نہیں کرنا پڑتا یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں،
यानी मेरे आका का तारुफ उनकी पिछली किताबों में मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमने अपने महबूब का तारुफ तौरात और इंजील में लिख दिया था। ये जानते हैं, ये पहचानते हैं, इनको पता है। सिर्फ और सिर्फ इनकार की एक वजह है कि नस्बी तासुब है। इनका इरादा यह था कि अल्लाह का आखिरी नबी बनु इसहाक में आए, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जहां नबुव्वत को रख दे। अल्लाह किसी के जोर के तले आने वाला तो नहीं। अब अल्लाह ने अपनी मर्जी के मुताबिक अपना आखिरी नबी हजरत इस्माइल के औलाद में भेजा, हुजूर तशरीफ लाए। अब इनका इम्तिहान था कि नस्बी तासुब को आगे रखते हैं या अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को आगे रखते हैं। तो जो यहूदी ईमान लाए, इस्लाम लाए, कुरान करीम में दो बातें और जिक्र की गई कि यहूद नसारा में से जो इस्लाम लाएगा उसको अल्लाह डबल अजर देगा, और जो मुनकर होगा, इस्लाम को कबूल नहीं करेगा, उसको डबल अजाब दिया जाएगा। क्यों? इसकी वजह है, वजह यह बयान की गई कि पिछले अंबिया हमारे नबी का तारुफ करवा चुके थे, हुक्मन कह चुके थे कि अगर तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह का आखिरी नबी तशरीफ ले आए, कलमा पढ़कर मुसलमान होना है। जिसने इनकार किया उसने सिर्फ हमारे नबी का इनकार नहीं किया, पिछले नबियों का भी इनकार किया। इस वजह से उनको डबल अजाब दिया जाएगा, और जो बात मान गया उसको डबल अजर दिया जाएगा। इसलिए कि जिसने बात मानी उसने सिर्फ हमारे आका की बात नहीं मानी, पिछले अंबिया की बात भी मानी। तो जिसने माना उसको डबल अजर, जिसने इनकार किया उसको डबल सजा दी जाएगी। बहरहाल ये जो यहूदी हैं इनकी बहुत सारी खराबियां हैं। हमारा अकीदा है मुसलमानों का लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह किसी का बेटा है ना कोई अल्लाह का बेटा है। कुरान में वाज़ेह तौर पर कह दिया गया अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, दीन इस्लाम खालिस है, वहदहू ला शरीक को हम मानते हैं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। लेकिन यहूदी क्या कहते थे? क़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह, कुरान में अल्लाह ने फरमाया यहूदी कहते थे कि हजरत उज़ैर भी अल्लाह के बेटे हैं। यानी इस्लाम शिर्क की नफी करता है, और यहूदी जो थे वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी माबूद मानते थे, अल्लाह का बेटा मानते थे। इस्लाम इसके मुनाफी है। यहूदियों की खराबियों में से खराबी थी कि इन्होंने अंबिया को कत्ल किया। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाह व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़्क़ि व यक़्तुलूनल लज़ीना यअमुरूना बिल क़िस्ति मिनन नास फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जिन्होंने हमारी आयात का इनकार किया, यानी यहूद व नसारा, सिर्फ उन्होंने ये इनकार नहीं किया बल्कि व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़्क़, ना हक इन्होंने अंबिया को कत्ल किया। ये कोई छोटा जुर्म नहीं। एक एक दिन में 36 नबियों को यहूदियों ने मारा, कत्ल किया, शहीद किया, और बड़े बड़े उलमा को सैकड़ों की तादाद में एक एक दिन में मार देते थे। कसूर क्या था? सिर्फ यह था कि वो कहते थे शराब ना पियो, सूद ना खाओ, जिना ना करो, लवातत ना करो, दीन हक को कबूल करो। उनका और कोई कसूर नहीं था। उनसे माल नहीं मांगते थे, औलाद नहीं मांगते थे, जान नहीं मांगते थे, सिर्फ दीन हक की दावत देते थे कि ये जो तुम काम कर रहे हो, शराब पीने वाला, जिना करने वाला, लवातत करने वाला, दीन हक को ठुकराने वाला, इसको छोड़ दो। सिर्फ इस वजह से एक एक दिन में 30 36 अंबिया को इन यहूदियों ने मारा, उनको शहीद किया। यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़्क़, अंबिया को ना हक मारते रहे, कत्ल करते रहे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने कई मकामात पर यहूदियों पर लानत फरमाई है। लुइनल लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊदा व ईसा इब्न मरियम, दो नबियों की जुबान से, हजरत दाऊद, हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह ने इन दो नबियों की जुबान से लुइनल लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल, बनी इसराइल के काफिरों पर अल्लाह ने लानत फरमाई। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, कि उन पर अल्लाह की लानत हो उनके उस कुफ्र की वजह से कि उन्होंने हमारे आका को झुठला दिया, और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो दीन हक लेकर आए थे उसको झुठला दिया। इसी तरह यहूदी कहते थे कि हमें अपने गुनाहों पर कोई शर्मिंदगी नहीं। बड़े बड़े गुनाह करते थे, जिना करते थे, लवातत करते थे, सूद खाते थे, शराबें पीते थे, बदकार थे, सब कुछ थे, लेकिन शर्मिंदा नहीं थे। कहते थे कि हजरत इब्राहिम माज़ल्लाह यहूदी थे, हमें वो बचा लेंगे। अल्लाह ने उनके इस नजरिए का कुरान करीम के अंदर रद्द फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मा कान इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा। अल्लाह ने फरमाया हजरत इब्राहिम न यहूदी थे
ना नसरानी थे, वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा, हाँ वो राह हक पर थे, मुसलमान थे। उनका अकीदा इस्लाम वाला था, यहूदियों वाला नहीं था। ये इनकी खराबियां हैं जो अल्लाह कुरान करीम के अंदर बार बार जिक्र फरमा रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमाया, लताजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। ए महबूब, ए कुरान पढ़ने वाला, ए मुसलमान, तू पाएगा इस्लाम का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो यहूदी है, उसके बाद मुशरिक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बाद। ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को अपना दोस्त न बनाओ, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। वाज़े तौर पर कुरान में अल्लाह ने बता दिया। हजरत सफिया हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है, ये एक यहूदी बाप की बेटी थी। इनका बाप हुयई बिन अख्तब यहूदी था, लेकिन हजरत सफिया हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है। मेरे आका ने अपनी ज़ौजा से एक मरतबा पूछा कि ये बताओ कि कुरान कहता है कि यहूदो नसारा मुझ मोहम्मद को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपनी औलाद को पहचानते हैं। तू तो अपने बाप दादा में रह कर आई है, अपने खानदान में, तूने कुरान की इस आयत का मतलब अपने खानदान में क्या समझा? जब हजरत सफिया से मेरे आका ने यह पूछा कि तेरा बाप यहूदी, तेरा चचा यहूदी, तेरे भाई यहूदी, तेरा खानदान यहूदी, और कुरान कहता है यहूदी मुझे इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं, तो जब मेरे आका ने हजरत सफिया से यह पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ मैं सुनती थी मेरा बाप और मेरा चचा छुप छुप कर कहते थे कि वाक़अतन अल्लाह के महबूब सच्चे नबी हैं। उन्होंने गवाही दी कि मैंने अपने कानों से सुना, ये छुप छुप कर गवाहियां देते थे कि ये सच्चे नबी हैं। सिर्फ नस्बी तासुब था कि हम जो हैं वो बड़े बाप की औलाद हैं और हम तो अंबिया के खानदान से हैं। अल्लाह ने उनके इस नजरिए को रद्द किया कि अल्लाह के नजदीक जो काबिल कबूल चीज है वो तकवा है, वो नेकी है, वो खानदान नहीं है। कुल्लु तक़िय्यिन व नक़िय्यिन फहुवा आली। मेरे आका ने फरमाया हर मुत्तकी परहेजगार क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद की आल से उठाया जाएगा, चाहे वो नसब का खानदान का मोची ही क्यों ना हो। अगर वो तकवे में आगे बढ़ गया, मेरे आका ने फरमाया कि हर मुत्तकी क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद की आल से उठाया जाएगा। तो अल्लाह के नजदीक नसब बाद में है, नसब तो एक पहचान है, आगे बढ़ने का जरिया तकवा और नेकी है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना औलन नासि फी अल मुत्तकून मन कानू हैसु कानू। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझ मोहम्मद के सबसे ज्यादा नजदीक वो बंदा है जो तकवे में आगे है, मन कानू जो भी हो, हैसु कानू जहां भी हो। जरूरी नहीं कि मदीने में रहता हो, जरूरी नहीं कि मक्के में रहता हो, जरूरी नहीं कि हाशमी कुरैशी सैयद हो, चाहे जात का मोची हो, चाहे जात का कुम्हार हो, चाहे मुल्तान रहता हो या कराची रहता हो, मन कानू हैसु कानू। मेरे आका ने फरमाया इन्ना उलन नासि बी, मेरे नजदीक मेरे करीब सबसे ज्यादा कुर्ब अल्लाह उसको अता फरमाएगा जो तकवे में आगे बढ़ जाएगा। नसब को मियार नहीं बनाया गया। अब भी इस वक्त भी लोग एक दूसरे के खानदानों पर फख्र करते हैं कि मैं बड़ा और फलां छोटा, छोटा और बड़ा खानदान की वजह से नहीं, नेकी की वजह से। इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत आती है, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदियों के बड़े आलिम थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना पाक तशरीफ लाए तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। बहुत बड़े आलिम थे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद से भी थे, यानी सादात में से थे। हुजूर की बारगाह में आए, अभी कलमा नहीं पड़ा, मुसलमान नहीं हुए। इन्होंने आकर 3 सवाल किए। आकर कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, मैं 3 सवाल करता हूं, नबी के अलावा इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर सच्चे नबी होंगे अभी वाज़ेह हो जाएगा, अगर आप माज़अल्लाह झूठे नबी हैं तो आपको सवालों का जवाब नहीं आएगा। सवाल देखना कैसे थे। पहला सवाल इन्होंने किया, यह बताओ कि क़यामत की सबसे पहली निशानी दुनिया में कौन सी जाहिर होगी। दूसरा सवाल, यह बताओ कि अहले जन्नत जब जन्नत में जाएंगे सबसे पहले अल्लाह जन्नतियों को कौन सा खाना देगा। तीसरा सवाल, यह बताओ कि बच्चा जब पैदा होता है कभी उसकी शक्ल और सूरत बाप से मिलती है, कभी मां से मिलती है, ऐसा क्यों होता है। अब यह मेडिकल का सवाल है। 1500 साल पहले अब्दुल्ला बिन सलाम मेरे आका की बारगाह में आकर सवाल कर रहे हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका सवाल सुना, पहले सवाल का जवाब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक मशरिक से आग उठेगी जो मगरिब तक जाएगी, क़यामत की पहली निशानी ये होगी। दूसरे सवाल का जवाब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहले जन्नत को सबसे पहला खाना
जन्नत के अंदर मछली का जिगर दिया जाएगा, मछली, भुनी हुई मछली, उसका जिगर, फरमाया उसका सीना, अहले जन्नत को सबसे पहला खाना जन्नत में यह दिया जाएगा। बच्चा माँ और बाप के मुशाबे क्यों होता है? फरमाया कि बाप का खास पानी अगर माँ के खास पानी पर गालिब आ जाए तो बच्चा बाप के मुशाबे होता है, और अगर माँ का पानी गालिब आ जाए तो बच्चा माँ के मुशाबे होता है। आज की मेडिकल साइंस यही कहती है जो मेरे आका 1500 साल पहले फरमा गए। जब ये 3 सवालों का जवाब मेरे आका ने दिया तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या रसूलल्लाह मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मैंने यहूदियत को तर्क किया, दीन इस्लाम को कबूल किया। लेकिन अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह जो मैंने इस्लाम कबूल किया है, मदीना के रहने वाले यहूदियों को ये बहुत कठिन लगेगा कि अब्दुल्ला बिन सलाम हमारा इतना बड़ा आलिम मुसलमान हो गया। इतने में कुछ यहूदी हुजूर की बारगाह में आए। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यहूदियों से पूछा, फरमाया अय्यु रजुलिन अब्दुल्लाहि फीकुम, फरमाया बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम तुम्हारे अंदर कैसा बंदा है? अब वो कहने लगे, खैरुना वब्नु खैरिना सय्यदुना वब्नु सय्यदिना, बड़ा अच्छा है, बड़ा आलिम है, सैयद है, सरदार है, सादात में से है, हमारा बड़ा आलिम है। जब उन्होंने तारीफें कर ली, अब्दुल्ला बिन सलाम पीछे छुपे हुए थे, तो मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अराइतुम इन अस्लम अब्दुल्लाह इब्न सलाम, फरमाया अगर अब्दुल्ला बिन सलाम इस्लाम ले आए तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल होगा? उन्होंने कहा माज़अल्लाह माज़अल्लाह, इतना बड़ा आलिम और इस्लाम को कबूल कर ले, माज़अल्लाह वो नहीं करेगा ऐसा। जब उन्होंने ये कहा तो अब्दुल्ला बिन सलाम पीछे छुपे हुए थे, बाहर निकले और बुलंद आवाज से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यहूदियों को कहने लगे कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। अब ये यहूदी जो अभी अब्दुल्ला बिन सलाम की तारीफें करते थकते नहीं थे और कह रहे थे, खैरुना वब्नु खैरिना सय्यदुना वब्नु सय्यदिना, इसका बाप भी बेहतर, इसका दादा भी बेहतर, ये भी बड़ा आलिम सादात में से है, सैयद है, हमारा बड़ा आलिम है। जब उन्होंने ये सुना कि अब्दुल्ला बिन सलाम इस्लाम ले आए तो अब ये कहने लगे, शर्रुना वब्नु शर्रिना, अभी कह रहे थे कि बड़ा अच्छा है, अभी कहने लगे बड़ा बुरा है। ये पहले भी बुरा था, इसका बाप भी बुरा था। माज़अल्लाह यहूदी जो थे उन्होंने इस्लाम को कबूल करने की बुनियाद अपना नस्बी फख्र बनाया, दलाइल को ना बनाया। अब्दुल्ला बिन सलाम ने दलाइल को सामने रखा। जब मेरे आका से सवाल किए और हुजूर ने उनके हर सवाल का जवाब दिया तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो इस वाकया से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपना नस्बी फख्र आगे नहीं रखना चाहिए। जब हक बात वाज़े हो जाए, जाहिर हो जाए, हक को कबूल करके दीन इस्लाम के पीछे चलना चाहिए। तकब्बुर इसी वजह से इस्लाम में हराम है। तकब्बुर किसे कहते हैं? हक बात को जुठला देना, इसे तकब्बुर कहते हैं। जो बंदा हक जान कर समझ कर फिर भी जुटला दे वो मुतकब्बिर है, हराम का मुर्तकिब हो रहा है। हमें हुक्म है जब हक वाज़े हो जाए, इस्लाम तुम्हारे सामने रोजे रोशन की तरह आया हो जाए, फिर पीछे न रहना, इस्लाम को कबूल करके इस्लाम के पीछे चल पड़ना। तो मुख्तसर वक्त के अंदर मैंने आपके सामने यहूद व नसारा का थोड़ा सा तारुफ आपके सामने रखा। अल्लाह तबारक व तआला इनके शर से हम सबको महफूज फरमाए।